شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العظیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي القرشي المكي المدني التحامي سيد الباحث سراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقارة وسكينة المسجون ورسول المقدس مصطفى الأمجد محمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أعطى الله عنكم رزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا ونعمة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر وفضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم أجمعين قول الحق بالحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا خاندان اسم الطهارة وعوذ بالله من السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم بزرگان ملت ماتم داران سالار شہیدہ و شہداء کربلا اور صاحبان خجل، بہرحال آپ مسلسل جب محرم سے مجلسیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور شہزادی کو ان کے لال کا غصہ دے رہے ہیں، یہ عزاداری کیا ہے اور کیوں ہے؟ توجہ رہے، یہ عزاداری ہماری شناخت ہے، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یہ عزاداری ہماری آئی ڈی ہے، یہ عزاداری ہمارا پروف ہے۔ عزیزان مطلب اس بیوی کا کرم ہے جس نے یزید کے دربار میں فرش عزا بچھا کر ہمیں ہماری شناخت دی۔ اس بیوی کا کرم ہے جس نے ہمیں ہماری پہچان عطا کر دی۔ عزیزان محترم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس زمینداریاں ہیں، ان کے پاس رجواڑے ہیں، ان کے پاس دولت ہے۔ ہم تب یہ دیکھیں گے جب یہ رجواڑے ختم ہو جائے، یہ دولت ختم ہو جائے، یہ زمینداریاں ختم ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر ان کے جلوس کیسے جو ہے بلندی پر جا رہے ہیں، ان کی مجلسیں دن پر دن کیسے بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی یہ تعزیہ داری دن پر دن کیسے بڑھتی جا رہی ہے، ان کی یہ ماتمداری دن پر دن کیسے فروغ پا رہی ہے۔ لوگوں نے جب یہ اعتراض کرنا شروع کیا اور یہ کہنے شروع کر دیے کہ جو ہے ان کے پاس رجواڑے ہیں، ان کے پاس زمینداریاں ہیں، ان کے پاس دولت ہے، عجب نہیں حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس زمینداریاں ہیں اس لیے مجلسیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس رجواڑے ہیں اس لیے مجلسیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس زمینداریاں ہیں اس لیے جلوس کر رہے ہیں، تو دیکھنا کہ ایک دن وہ وقت آئے گا یہ زمینداریاں ختم ہو جائیں گی، یہ دولت ختم ہو جائیں گی، یہ رجواڑے ختم ہو جائیں گے۔ ان سے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس قوم کے بچوں کا یہ عالم ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد رات میں شبیداری کر رہے ہیں، سوچو ان کے قوم کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا۔ آواز بلند صلوات
वो हुसैन वो खुश किस्मत है जिसको रब ने नाना दिया तो रसूल जैसा नाना दिया। वो हुसैन जिसके लिए रसूल ने सजदों को तूल दिया। अजीजान मोहतरम, आयतुल्लाह शिराजी का जमाना है और एक ईसाई ईरान पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि मेरा ये दावा है कि अगर एक इंसान मुझसे ये पूछे कि मेरे पास कितनी दौलत है, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मैंने अभी क्या खाया है, मेरे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ। आयतुल्लाह शिराजी का जमाना है, वो ईसाई ईरान में पहुंचा और उसने दावा किया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये बताओ कि मेरे पास दौलत कितनी है। उसने कहा इतनी दौलत है। कहा गाड़ियां कितनी है, क्या इतनी गाड़ी है। कहा घर कितने हैं, मकान कितने हैं, क्या तुम्हारे पास इतने मकान हैं। अब लोग जो है हैरत अंगेज हुए, परेशान हुए, आखिर ये कैसा इंसान है जो ये दावा कर रहा है। बादशाह के दरबार में उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद बादशाह ने पूछा ये बता, तो दुनिया भर के लोगों की चीजें बता रहा है, ये बता कि मेरे पास क्या है। तो मेरे पास क्या है। अब उसने एक एक करके गिनाना शुरू किया। आपके पास सिपाही इतने हैं, आपके पास असलहे इतने हैं, आपके पास लोग इतने हैं, आपकी दौलत इतनी है। अब बादशाह जो है हैरान और परेशान हुआ। होने के बाद अब उसको कुछ समझ में जब नहीं आने लगा, उसने कहा ऐसा है, एक शिया का आलिम दीन है जिसका नाम है आयतुल्लाह शिराजी, उसको मेरे दरबार में बुलाया जाए। जैसे ही अल्लामा शिराजी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उसने देखा अल्लामा को सलाम कलाम हुआ और होने के बाद बादशाह ने अल्लामा को हुक्म ये दिया कि ये कहता है कि इंसान के हर चीज बता सकते हैं, जो जाहिर में नहीं उसको भी बता सकते हैं, कितनी दौलत है इसको भी बता सकते हैं, कितने पैसे हैं ये भी बता सकता है, कितना बैलेंस है ये भी बता सकता है, कितनी गाड़ियां हैं ये भी बता सकता है। आयतुल्लाह शिराजी ने कहा अच्छा ठीक है, तू मेरे सवाल का एक जवाब दे दे। उसने कहा बहरहाल आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अल्लामा ने अपनी कबा के जेब में कुछ अपने कबा के जेब में हाथ डाला और डालने के बाद एक मुट्ठी में अपनी जो है कुछ चीजें निकाली और उससे पूछा कि ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तवज्जो चाहता हूँ, मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने कहा देखिए मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि आपकी मुट्ठी में आया कैसे है। तवज्जो है, मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि आपकी मुट्ठी में आया क्या है। अब लोगों ने कहना शुरू किया, अब तक तू ये बता रहा था इनके पास बंगले इतने हैं, इनके पास मकान इतने हैं, इनके पास गाड़ियां इतनी है, अब तू क्यों नहीं बोलता कि आखिर आयतुल्लाह के मुट्ठी में क्या है। आयतुल्लाह की मुट्ठी में आखिर कौन सी चीज है जो तू जो है घबरा गया, तू जो है परेशान हो गया। उसने कहा मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि इनकी मुट्ठी में जो जन्नत की मिट्टी है आखिर आए कहां से। आज अपने अल्लामा ने जवाब दिया मेरी मुट्ठी में जन्नत की मिट्टी नहीं है बल्कि करबला की मिट्टी है। रोज़े हश्र लोग ये कहेंगे ऐ काश मैं तुराब होता। तवज्जो रहे, तुराब का क्या माना है, मिट्टी के है। ज़ाहिरी तौर पर हर कोई यही जानता है कि तुराब का मतलब मिट्टी। तवज्जो रहे, तुराब का क्या मतलब, मिट्टी का है। लोग रोज़े हश्र क्या कहेंगे, ऐ काश मैं मिट्टी होता। तो सवाल ये है क्या इंसान मिट्टी से नहीं बना। जो रोज़े हश्र कहेगा ऐ काश मैं मिट्टी होता, तवज्जो रहे, मिट्टी होता। अल्लामा शेख सुदुर अलैहि रहमत जो है अपनी किताब मानिल अखबार में लिखते हैं कि तुराब का क्या माना है। अबू तुराब मिट्टी का बाप। छठी सरकार का जमाना है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। किसी ने आगे पूछा मौला ये बताइए तुराब का क्या माना है। इमाम ने कहा कुरान क्या कहता है। तो लोगों ने कहा मौला आप ही बताइए। इमाम ने कहा सूरह नबा की आयत है या कुलुल काफिर या लैतनी मुद्दत राबा।
روز حشر کافر یہ کہیں گے کیا کاش میں مٹی ہوتا، توجہ ہے، کاش میں مٹی ہوتا۔ امام نے کہا کہ تراب کا مطلب مٹی نہیں ہے، توجہ ہے۔ شیخ صدوق نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تراب کا مطلب مٹی نہیں ہے بلکہ تراب کا مطلب ہے شیعہ، توجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں تراب کا مطلب ہے شیعہ۔ اب ابو تراب مٹی کا بعد روز حشر روز محشر لوگ یہ کہیں گے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ بھائی کون شیعہ کامیاب ہیں؟ وہ شیعہ کامیاب نہیں ہے جو فقط نام کے ہیں۔ نام کا شیعہ ہونا اور ہے، کردار کا شیعہ ہونا نام کا شیعہ ہونا اور ہے، کردار کا شیعہ ہونا اور ہے۔ اپنے کردار کو اہل بیت کے عکس سے، اہل بیت کے کردار سے ایسا ملا لے کہ مولا خود کہے کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اپنے افکار کو، اپنی فکروں کو، اپنی زبان کو، اپنے انداز کو، اپنی فکر کو، اپنے لب و لہجے کو، کیوں؟ اس لیے یہ رسول جو ہے جب کسی سے ملتے تھے تو پہلے رسول سلام کیا کرتے تھے، توجہ رہے۔ یہاں تو یہ انتظار رہتا ہے کہ سامنے والا مجھے کب سلام کرے گا، سامنے والا مجھے کب سلام کرے گا، دشمن ہو یا دوست، رسول سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، ناگاہ جناب عیسیٰ کی نظر پڑی ایک بستی پر، کیا دیکھا کہ وہ بستی عذاب میں مبتلا ہے۔ جناب عیسیٰ جو ہے ٹھہرے رکے اور کہا کوئی ہے جو میرا جواب دے۔ ایک شخص نے کہا جی یا نبی خدا کہیے کیا ہوا ہے، کیا اس بستی پہ عذاب نازل ہوا ہے؟ کہا کیوں؟ کیا اس وجہ سے یہ بستی والے دنیا سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، توجہ رہے۔ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ کہ اچھا یہ بتا جب یہ سارے عذاب میں مبتلا ہیں تو تو کیوں بچ گیا؟ اس نے کہا یا نبی خدا میں ان میں تو تھا لیکن ان جیسا نہیں تھا، لیکن ان جیسا نہیں تھا۔ اب عزیزان محترم نبی نے کہا اچھا عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا روز حشر ہم اسی درخت سے جو ہے چمٹے رہیں گے اور اسی درخت کے سہارے رہیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ جب ایک انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اور محبت کا فلسفہ یہی ہے کہ جس چیز سے محبت کی جائے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، توجہ رہے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ بھائی اگر کسی سے محبت ہو تو اس کے بارے میں جان لینا ضروری ہوتا ہے، توجہ رہے، اس کے بارے میں جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ جس کسی سے بھی محبت ہو اس کے بارے میں معلوم رکھو، ورنہ محبت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، محبت کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اب اگر پاکستان میں لوگ یہ کہنے لگے رضی اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو کم سے کم اتنا تو معلوم کر لو کہ یزید کی ماں کا کیا نام تھا، اتنا تو معلوم کر لو کہ یزید کی ماں کا کیا نام تھا۔ جس چیز سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، توجہ، وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ولایت علی ہماری ماں ہے، توجہ ہے، ہماری ماں ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان سے لوگوں نے جو ہے مذاق کیا اسے اور ان کی توہین کی، کہا سلمان تمہاری مردیت کیا ہے؟ جناب سلمان رسول کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول خدا لوگوں نے میرا مذاق اڑایا ہے اور کہتے ہیں تمہاری مردیت کیا ہے؟ توجہ رہے، ولایت علی ہماری ماں ہے، اس لفظ پہ توجہ رہے، ولایت علی ہماری ماں ہے۔ جیسے ہی جو ہے رسول سے جناب سلمان نے کہا، رسول نے کہا اے سلمان اب اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تمہاری مردیت کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم ان سے یہ کہنا سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام۔ عزیزان محترم اسلام باپ ہو سکتا ہے، ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی۔ ابن اسلام، ولایت علی ہماری ماں نہیں ہو سکتی۔ یا بولو کافر یا اتنی گفتگو تو رہا، لوگ کہیں گے اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا، میں
अली का शिया होता, आप अपने आप को पहचाने, आप अली के शिया हैं। बस फर्क इतना सा है और मैसेज इतना है कि अपने अफकार को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने हर अंदाज को ऐसा अपनाएं कि हाँ लोग ये कहें कि हाँ वाकई है अली के शिया हैं। वरना ये ना हो कि हाँ ये फला गाँव के हैं, फला बस्ती के हैं और ये आते भी हैं मुहर्रम में, लेकिन इनके किरदार, इनके अफकार, इनकी ज़बानें, ये सब चीजें जो है इंसान की सबूत बनती है कि हाँ ये फला घर का है। बचपन के आलम में क्यों कहा जाता है कि अपनी जबान को सही रखो? बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी जब जबान खुलेगी तो तुम्हारे खानदान की पहचान होगी। जब तुम्हारी जबान खुलेगी तो तुम्हारी पहचान होगी। जब तुम्हारी जबान खुलेगी तो तुम्हारी पहचान होगी। जब इतना ख्याल तुम्हारे घर के बुजुर्गों को है कि जब तुम्हारी जबान खोलेगी तो तुम्हारी पहचान होगी, जब तुम्हारी पहचान होगी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने खानदान का इतना ख्याल है, अपने कौम और धर्म का ख्याल नहीं है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा धर्म पहचाना जाएगा, तुम्हारा मज़हब पहचाना जाएगा, तुम्हारी कौम पहचानी जाएगी। बस अजीजों, मैंने जो है असबाब रहमत को समेट दिया और बहरहाल आप मुसलसल गिरियावजारी कर रहे हैं, शहजादी को अपने लाल का गुस्सा दे रहे हैं। वो वक्त आया कि जब इमाम हुसैन नाना की कब्र पहुंचे और खुदा हाफिज किया, ऐ नाना, हुसैन की ये दिली ख्वाहिश थी हुसैन आपकी गुजारी करता, लेकिन ऐ नाना, मदीने वालों ने रहने नहीं दिया। हुसैन ये चाहता था कि आपकी कब्र पे चिराग जलाए, लेकिन ऐ नाना, उम्मत ने मजबूर कर दिया। ऐ नाना, आपकी सुन्नत को लोगों तक पहुंचाने के लिए हुसैन खुरूज कर रहा है, हुसैन मदीने को छोड़ रहा है। माँ की कब्र पहुंचे, अम्मा खुदा हाफिज, हुसैन जा रहा है। अम्मा जिसे आपने चकियाँ, अम्मा वो हुसैन जा रहा है। अजब नहीं, कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, ऐ हुसैन, अब्बास को मेरे करीब बुलाओ। जनाब अब्बास आए, एक हाथ जो कब्र में रखा, आवाज़ आई कब्र ज़हरा से, अब्बास तुम मेरा लाल है, हुसैन की हिफाजत करना। अम्मा, इमाम हुसैन कहते हैं माँ से, ऐ अम्मा, दुआ करना कि हुसैन का हौसला कहीं कम ना हो। ऐ अम्मा, दुआ करना जब 6 माह के अली असगर के गले से तीर को निकालूं तो मेरे हौसले में कमी ना आए। ऐ अम्मा, दुआ करना जब जवान बेटे अली अकबर के सीने से नेज़े के अली को खींचूं तो मेरे हौसले में कमी ना आए। ऐ अम्मा, दुआ करना जब बराबर के भाई अब्बास के शानों को मैं उठाऊं तो मेरे हौसलों में कमी ना आए। अम्मा, नूर लुभान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजों में हसन देखने चलो। हाँ ज़ादारो, मसाइल जो है एक तवील पढ़ना है मुझे, और बहरहाल ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि इंसान जो है गिरिया करे। रवायत में मौजूद है कि अगर आंखों से अश्क ना आए तो इंसान अपनी आवाज़ बुलंद कर ले, और जब आवाज़ भी ना बुलंद कर पाए तो इंसान इस्तग़फ़ार करे कि आखिर हमने जो है ऐसे कौन से अमल किए हैं इमाम हुसैन और रोने के लिए हम अपने आप को रोक पा रहे थे या नहीं रोक पा रहे थे। अज़ादारो, तारीख गवाह है, 2 इमाम ऐसे इमाम हैं जिन्होंने मदीना को छोड़ा है। एक हमारा और आपका आठवां इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने मदीना को छोड़ा, और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा है, जनाब ज़ैनब हमरा चली है। अरे भैया, ज़ैनब साथ चलेगी। हुसैन ने कहा, अरे बहन ज़ैनब, तुम माँ की निशानी हो, बाबा की निशानी हो। जब 8वें इमाम ने मदीने को छोड़ा, कुछ वक्त के बाद मासूमा कुम ने कहा कि मेरा भाई मदीना छोड़कर जा चुका है, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती, मैं भी अपने भाई के खराब में जाऊंगी
और ये हुक्म दिया, उन रास्तों से मैं नहीं जाऊंगी जिन रास्तों से मेरा भाई गया है, इस वजह से कि मेरा भाई तबलीग करता हुआ गया होगा, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी तबलीग करती हुई जाऊं। जरा तसव्वुर करें कि दो इमाम है, एक 8वें इमाम और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने मदीने को छोड़ा है। इधर मासूमा तुम ने मदीने को छोड़ा, और जैसे ही मदीने को छोड़ा है तुम पहुंची, क्या देखा? सियाह लिबास है, सियाह परचम है, लोगों के पैरों में नालाएं नहीं है। तो जो मासूमा तुम एक रईस के पास गई और जाके कहती क्या है, ऐ रईस, आखिर ये क्या माजरा है? ये काले लिबास क्यों है? ये सियाह परचम क्यों है? लोगों के पैरों में नालाएं क्यों नहीं है? तो रईस कहता है, ऐ बीबी, आपको मालूम नहीं? अगर नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं, क्या हुआ? क्या आपका भाई दुनिया से रुखसत हो गया? आपका भाई दुनिया से रुखसत हो गया। रवायत कहती है, दो रवायतें मिलती हैं। पहली रवायत ये कहती है कि मासूमा तुम जो है चंद दिन जिंदा रही और इस दुनिया को पूछ कर गई, लेकिन दूसरी रवायत कहती है कि मासूमा तुम ने अपने सर को जो है महफिल की चूक से मारा और वही जो है मासूमा तुम इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूंगा ऐ बीबी, आपने अपने भाई को इस दुनिया से जाते हुए नहीं देखा। जब आपके भाई को जो है जहर दिया गया, उस आलम में आपने अपने भाई को नहीं देखा। कोई ज़ैनब से पूछे, ज़ैनब को इस बात का इल्म है कि कल जो सुबह का सूरज नमूदार होगा, मेरा भाई शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारों, एक भाई और बहन का मुझे मसाइल पढ़ना है, और आप जब जब इंशाअल्लाह याद करेंगे, गिरिया करेंगे। दूसरा मौका कि जब जनाबे मूसा की माँ ने जनाबे मूसा को खतर की वजह से संदूक के हवाले किया और करने के बाद दरिया नील के हवाले कर दिया, तो बहन को बर्दाश्त ना हो सका। दरिया के किनारे किनारे कसरे फिरौन तक जनाबे मूसा की बहन गई, और जब ये देखा कि मेरा भाई बच गया, सलामत है, तो जनाब मूसा की बहन को जो है सुकून हो गया। अल्लाह अकबर, सुकून हो गया। आज़ादारों, एक जुमला कहूं कि जब भाई किसी वजह से परेशान होता है तो बहन सहारा बन के खड़ी होती है। भाइयों के सहारे का नाम है बहन। बहन जो है बहुत सहारा बनती है। आपने देखा है, जब आप घर से किसी सफर पर जाते हैं तो माँ के बाद अगर कोई आता है तो वो बहन आती है और सलामती की दुआ करती है। क्यों? इसलिए कि बहन जो है माँ की शबीह हुआ करती है। अब आज़ादारों, तीसरी मंजिल वो मंजिल आई कि जब जनाब यूसुफ की बहन से जनाब यूसुफ से मुलाकात हुई और जनाब यूसुफ की बहन ने पूछा, ऐ भैया, ये बताओ भाइयों ने तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म किया? जनाब यूसुफ कहते हैं, पहले तो मेरे पैरहन को उतारा और उतारने के बाद खंजर को निकाला। जैसे ही खंजर का नाम आना था, जनाब यूसुफ की बहन को गश आया और वहीं पर गिर पड़ी। मैं कहूंगा, यूसुफ की बहन, आपने फकत खंजर का नाम सुना, आप बेहोश हो गई। कोई ज़ैनब से पूछे कि ज़ैनब की निगाह देख रही थी, हुसैन का गला था और शिमले का खंजर चल रहा था। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय शुहदाए करबला के। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहा, बहन अब मुझे खुदा हाफिज कहो, अब कोई न बचा। जनाब ज़ैनब ने कहा, ठीक है ऐ मेरे भैया, हम खुदा हाफिज कहते हैं। उसके बाद से इमाम हुसैन ने कहा, बहन क्या माँ की वसीयत याद नहीं है? कहा, हाँ मुझे याद है। फिर अमल ला कर दिया। आज़ादारों, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन खैमे से ऐसे निकल रहे थे जैसे बड़े घर से जो है जनाजा निकल रहा हो। कभी इमाम हुसैन बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। आज़ादारों, उसी दरमियान हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैं करीब गया और जाने के बाद मैंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची है हुसैन के दामन को पकड़े हुए और कहती है, ऐ बाबा, अब तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आज़ादारों, इमाम हुसैन जो है रुखसत हुए। होने के बाद
आगे रहमान को आगे बढ़ाए, लेकिन रहमान ने चंद कदम बढ़ा, बढ़ने के बाद ठहर गया, फिर बढ़ा, फिर ठहर गया, फिर बढ़ा, फिर ठहर गया। इमाम हुसैन ने कहा रहमान ये आखिरी तुझे जहमत है, अब हुसैन तुझे जहमत नहीं देगा। नहीं मालूम रहमान ने किस जबान से कहा, ऐ मौला आफ्ता कयामत मेरी पुष्ट पर सवार रहिए, ये रहमान नहीं थकेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मेरे सूलों से लिपटी हुई आपकी 4 बरस की बच्ची ये कह रही है, ऐ बाबा के रहमान मेरे बाबा को मक्तब में ना ले जा, ऐ बाबा के रहमान मेरे बाबा को मक्तब में ना ले जा। हाँ दारो, इमाम हुसैन ने अपने सर को जब झुकाया, क्या देखा 4 बरस की बच्ची है। इमाम हुसैन ने रहमान से उतरने के बाद अब जो सकीना को अपने सीने पे लटाया और लेटाने के बाद खुदा हाफिज कहा। खुदा हाफिज जैसे ही इमाम हुसैन ने किया और करने के बाद मक्तल में पहुंचे और जंग करने जैसे ही जंग करना शुरू किया, जनाब कासिम को आवाज दी, कभी जनाब अली अकबर को पुकारा, कभी जनाब अब्बास को पुकारा और कहते जाते हैं, ऐ भैया अब्बास क्या भाई की जंग ना देखोगे, ऐ बेटा अली अकबर क्या भाई की जंग ना देखोगे। आजादारो आखिरी वक्त वो आया कि आवाज़ गैबी आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आजादारो इमाम हुसैन ने जैसे ही तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, कभी तीर बरसते हैं, कभी नैज़े बरसते हैं। एक तरफ से सिरहान ने जो इमाम हुसैन को नैज़ा मारा, एक मर्तबा जो है कुली ने नैज़ा मारा। आजादारो इमाम हुसैन अब जो है फरस पे झूमने लगे, कभी नैज़ा कुली अपनी तरफ खींचता है, कभी सिरहान अपनी तरफ खींचता है। आजादारो अजब नहीं फातिमा ज़हरा ने अपनी आगोश